Recording. Hope my screen is visible to everyone. Yes, sir. Okay. So in today's session, we'll be discussing two very easy topics. That is data validation and conditional formatting. And ସାର୍ ମୁଁ କାଲିର ସେସନଟା ଜଏନ୍ କରିପାରିନଥିଲି ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ତ ମୁଁ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିନି ଆଜି ଦେଖିଦେବି ସାର୍ ସେଇଟା ଏକ୍ସ ଲୁକଅପ୍ କାଲି ପଢା ହଉଥିଲା ନା ସାର୍ ବି ଲୁକଅପ୍ ଏଚ୍ ଲୁକଅପ୍ କୁ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିଲ ସାର୍ XLOOKUP. ସାର୍ ସେଇଟା ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମେ ସେସନ ରହିଲା ତାପରେ ହଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲା XLOOKUP ର ସେସନ। ସାର୍ XLOOKUP ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାର୍ସିଆଲି କଭର କରିଥିଲି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଅଦର୍ସ ରୋଜିତ, ବିନୟ, सर एक्स लुकअप ही ହେଇଥିଲା ଡ୍ରପ୍ ଡାଉନ୍ ଆଉ XLOOKUP, ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିଟା ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ହଁ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जोटा ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବ ସେସନ जोटा v lookup and h lookup and yesterday ଆମେ କଭର କଲେ x lookup जोटा कि तार एटा Yes. जोटा कि x lookup ଟା ହେଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ଟୁଲ जोटा कि ପାୱାରଫୁଲ ଟୁଲ ତାକୁ ସେଇଟା ୟୁଜ କଲେ ଆର ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଏବେ ଚାଲିଛି x lookup କହିବାକୁ ଗଲେ Yes, correct. Very good. So drop down and XLOOKUP. Value nahi nue in the sense, but this is the powerful function and latest function. So anything you can choose. Okay. more popular now Yes, the more x lookup popular. is more popular now. Correct. Yeah. So in the last session we covered drop down and XLOOKUP. So in today's session we'll discuss about the conditional formatting. Data validation first, then we'll move to the conditional formatting. So in order to perform data validation, we सर ଗୋଟେ क्वेश्चन ଥିଲା सर yes ଆମେ ସେ yes ପୁରା ଡ୍ରାଗ ଏଣ୍ଡ ଡ୍ରପ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଟେବୁଲ ଟା ତିଆରି କରିକି ବାକି Mhm. ସେଠି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ସେଇ ମାନେ ଜେନେରାଲାଇଜ ଫର୍ମୁଲା ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି Mhm. ସେଇ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ର ରେ ଖାଲି ଯଦି ମନ୍ଥ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିଦବା ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଡେଟେଡ ହେଇଯିବ ନା सर First row ରେ month ରେ change ସପୋଜ ଆମେ କରିଦବା ଧର ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ ସେଠି ଦେଇଛେ ଧର ସପୋଜ ପାଏଲ ଦେଇଛେ ଏପଟର ଦେଇଛେ ଧର ଇଂଲିଶ ର ତ ସେ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ନେମ ଟାକୁ ଇଂଲିଶ ରୁ ଧର ସପୋଜ ଫିଜିକ୍ସ କରିଦବା ତ ଏଠି ହଁ ତଳେ ତ ଡାଟା ଅଟୋମେଟିକ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା yes ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଟୁ ୱେ ଲୁକଅପ୍ ନା। ମୁଁ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହି ଆସୁଛି କି ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ଖାଲି ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଦେନ୍ ନେଷ୍ଟେଡ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରି, ମାନେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଅଟୋମେଟ କଲେ ବା ଡାଇନାମିକ କଲେ। डायनेमिक कला पर कौन है कि इट बिकम्स इट इज एबल टू परफॉर्म टू वे लुकअप मींस दीटा जाक वैल्यू को एका बेले सर्च कर, सब्जेक्ट नेम को सर्च कर पारछि, स्टूडेंट नेम को सर्च कर पारछि एका संगे। ओके, तो मु जेमति तुमको ये स्टूडेंट नेम रो एग्जांपल नै कि देखैली, तमे सेमति केगल हो किंबा मल्टीपल डेटा सोर्स अछि, यूट्यूब रे सर्च कर दो हेयर टू डाउनलोड डेटा सेट्स फॉर प्रैक्टिस। तो वैराइटीज ऑफ डेटा रे तमे निजे भाबी कि कौन ए डेटा रू मु एटा फेच କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ ମଲ୍ଟିପल ଡେଟାରେ ତମେ ସେଇଟା ଏକ୍ସ ଲୁକଅପ୍ ହଉ ଭି ଲୁକଅପ୍ ହଉ ୟୁଜ କରିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବ। ଓକେ, kaggle.com ହେଲା କି ଯୋଉ ବି ଡେଟା ସୋର୍ସ ଅଛି ଯୋଉଠୁ ତମେ ଏକ୍ସେଲ ଫାଇଲ CSV ଫାଇଲ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ, ତ ସେଠି ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ତମେ କଣ କରିବ, ଭରାଇଟିଜ ଅଫ ଡେଟା ଉପରେ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଡେଟା ଉପରେ ହେଲା, ଫିନାନ୍ସ ଡେଟା ଉପରେ ହେଲା, ତ ତା ଉପରେ ତମେ ଏଇ ଲୁକଅପ୍ ସେଇଟା ଫଙ୍କସନ ଗୁଡା ଲଗେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେଟା ଡିଲେଟ ହଉ ନାହିଁ, ପୁରା ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଡିଲିଟ ହଉନି। ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି VLOOKUP ରେ ଡିଲେଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏଟା ସେମିତି ପୁରା ଟୋଟାଲି ରିମୁଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଡିଲେଟ ହଉ ନାହିଁ ତ ଡିଲିଟ ହଉଛି ନା, ମାନେ ରିମୁଭ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ମାନେ ବୁଝିଲି, ଡିଲିଟ ହେଲା ନା, ସାର୍ ଡିଲିଟ ମୁଁ ହବାର ସେଟାକୁ ଇସ୍ୟୁ ସେୟାର କଣ, କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଡିଲିଟ ହବାର ଇସ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ ତ, ଡିଲିଟ ହବ ଫଙ୍କସନ ତ ଫଙ୍କସନ ବି ଲୁକଅପ୍ ବି ଫଙ୍କସନ, ଏଇଟା ତ ଫଙ୍କସନ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ ଡିଲିଟ ରେ। ओके, सो
Data validation. Any other questions, guys, before starting data validation? Prakash, any questions? सर फिल्टर पढ़ी सर कोटा फिल्टर सर फिल्टर ओके फिल्टर भी दरकार ठीक है पढ़े दो देखो हाँ फिल्टर मैं भूली जाइए थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग सो फिल्टर how this filter function works. So here see by using control shift L you can apply that is the shortcut to apply filter here in this table. Okay, but uh, we have another option as Alt A T. Okay, so for some laptops you will get the shortcut as Control Shift L. For some laptops Alt A T. Okay, to apply this filter. Okay, so here we can filter the data. For suppose I want to see only the employees who are from North region. So I have applied the filter, and here I have filtered only those employees who are working in North region. Okay, this is very simple, and all of you must have applied the filters and use the filters at some point of the time. I mean, most of the works in your whenever you are using Excel, so most of the time you must be using this particular filter. But we do have a filter function as well. The filter function ର କାମ କଣ ହେଲା for suppose ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଟେବଲ ରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏଠୁ ନେଇକି ଏ ଟେବଲ ରୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ ୱାଇଜ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ଦେଲି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ନର୍ଥ ଓକେ ଏଠି ମାନେ ଏ ସେଲ୍ ଟାକୁ ମୁଁ କଣ କରିବି କି ଏ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ ସେଲ୍ ମୁଁ ରଖିବି ଏଣ୍ଟର ୟୁର ରିଜନ ହିୟର ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଥିବି enter your region here okay कौन होगा कि तार जो साइड सेल टा एठी मु डेडिकेटेड रखि देबी गोटे रीजन तमे एंटर करिवो किछि भी रीजन लिखिलो साउथ रीजन नॉर्थ रीजन किछि भी रीजन लिखिलो रीजन लिखला परे कोन हबो सेही रीजन रो जहां भी सब एम्प्लॉय मानकर नेम थिबो से फिल्टर हेकी तुमको देखे देबो एठी ओके एठी हमें फिल्टर फंक्शन अप्लाई करथिबा ए रीजन को ने ए सेल रे जहां भी रीजन एंटर हबो ता हिसाब रे कोन हबो एटा ए डेटा फिल्टर हेकी पळे आसीबो ओके ठीक एई पर्टिकुलर एई टाइप रो काम पई हमें यूज कर परबा फिल्टर माने सपोज हमें गोटे सेल को नेले और से सेल रे हमें रीजन हो किबा एम्प्लॉय रो नेम हो एंटर एम्प्लॉय नेम हियर एम्प्लॉय नेम एंटर कर गुरु से को रीजन रे काम करछि सेटा फिल्टर हेकी पळे आसी ओके कि हमरो रीजन एंटर कर गुरु को एम्प्लॉय से रीजन रे काम करछन सेटा फिल्टर हेकी पळे आसीबो ओके सेति पय हमें फिल्टर फंक्शन यूज करिया फर्स्ट मु देखैबे एठी कि गोटे ड्रॉप डाउन नै गोटे ड्रॉप डाउन हमें क्रिएट करबा जोथरे drop down केमती create करंदी I have already showed you in the last session so here we have created a drop down and from this drop down we will filter region state and cells माने ये drop down जो employee रो ना select करिवा ता accordingly ता region state and cells amount हमको filter हेगी आसी जिबा दरकार so let's see for that what I'll do I'll use equals to filter function okay then array filter function ने तीनटा parameters अछि array include and if empty first one is array second one is include third one is if empty okay so array रे हम कोन करबा सेही कॉलम्स हमको सेलेक्ट करिवार अछि जो कॉलम हमरो फिल्टर जो वैल्यू गुडा हमरो फिल्टर हेकी देखेबा दरकार मते रीजन दरकार स्टेट दरकार सेल्स दरकार एई तीनटा वैल्यू मते फिल्टर हेकी आसीबा दरकार ओके तो array रे सब बेले सेही कॉलम गुडा सेलेक्ट करिवो जो कॉलम तुमको फिल्टर हेकी देखौछि माने देखेबा दरकार तो so what we need here we need region state and cells to be filtered by the employee name correct so that's why in array I have selected three columns those are region state and cells now in include
In include, we need to give one condition. Okay, what condition? I have selected the employee name column entirely equals to this cell. Okay, means a particular cell रे जो employee name थिबो, okay, employee name column ରୁ only ସେଇ employee ମାନଙ୍କର region, state and sales filter କରିକି ଆସେ। first ହେଲା array, array ରେ ଆମେ କଣ କଲେ entire region, state and sales center तीनटा column ଆମେ select कले, okay, because ସେଇ columns हमକୁ filter ହେଇକି ଦେଖେଇବା ଦରକାର। second ରେ कंडीशन, को कंडीशन माने जेतेबेले एम्प्लॉय नेम कॉलम रो को मानकर फिल्टर हे आसीबा दरकार। ए सेल रे जो एम्प्लॉय रो नेम सेलेक्ट हबो तो एंटायर एम्प्लॉय नेम कॉलम सेलेक्ट करली इंक्लूड रे इक्वल्स टू G15 ए सेल रे जो एम्प्लॉय रो नेम थिबो ता अकॉर्डिंगली कोन हबो सेई रीजन, स्टेट एंड सेल्स ओनली सेतिकी जिंस फिल्टर हेकी पळे आसीबो। तो जदी किछि वैल्यू मिसिंग थिबो तो ता जगह रे 0 शो करियो। लास्ट पैरामीटर इज इफ एम्प्टी, जदी एम्प्टी थिबो ताले 0 आसीबो। ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ କଲି ଆଶିଷ ନେମ୍ ଏଠି ମୁଁ ଆମର ଡ୍ରପ ଡାଉନ୍ ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। So according to that we got region, state and sales filtered here. Okay, if I change from Ashish to Saloni, it is getting filtered. I change from Saloni to Sunita. For Sunita we have region, state and sales missing, that's why it is giving 0. And if I select Om, according to that it got filtered like in which region Om is operating or Om is working, and the related states and sales amount we are getting here. Suppose एठी जदि मु गोटे कोन कली enter your region here, तो जहाँ भी region एठी enter हबो ता accordingly employee name filter हेके आसीबा दरकार। Okay, so equals to, can anyone guide me how, what should I write to get this? जहाँ भी रीजन एठी लिखिबी से रीजन रे कौन कौन किए किए एम्प्लॉई अछंती सेगुडा मते फिल्टर हेके आसीबा दरकार। कौन लिखिबा ए सेल रे जहाँ भी तमे रीजन गोटे साउथ लिख तो साउथ रे जति एम्प्लॉई अछंती सब फिल्टर हेके पळे आसीबा दरकार एम्प्लॉई नेम। तो फर्स्ट हला एरे, एरे रे हमें कौन एंटर करे जहाँ जोटा हमर आउटपुट दरकार। आउटपुट कौन दरकार एम्प्लॉई नेम, तो मु खाली एम्प्लॉई नेम कॉलम टाको सिलेक्ट कली। आउटपुट रे खाली एम्प्लॉई नेम फेच हेके आसीबा दरकार। देन कौन वाइज फिल्टर हबो माने रीजन वाइज फिल्टर हबो, राइट, जोठी रीजन माने ये से पर्टिकुलर सेल रे हमें जो रीजन एंटर करबा ता अकॉर्डिंगली एम्प्लॉई नेम्स हमरो फिल्टर हेके आसीबा दरकार। तो इंक्लूड रे मु कोन करबी रीजन कॉलम टाको सिलेक्ट करली इक्वल्स टू रे कोन देबी एई सेल रे जो वैल्यू एंटर हबो जो रीजन एंटर हबो। ओके, देन जोठी रीजन जोठी एम्प्लॉई फॉर सपोज मिसिंग अछंती सेठी 0 हमें करबो। हिट एंटर। रश्मिता, शांता, सुनीता पळे आसले बिकॉज तांकर किछि रीजन नाही। देखो रीजन ब्लैंक अछि, हमर एठी ये सेल टा ब्लैंक अछि। ओके, तो ब्लैंक रीजन रे जति की एम्प्लॉई थिले तांको रिकॉर्ड फेच हेकी पळे आसला। एठी रश्मिता साइड रे किछि रीजन नाही, शांता साइड रे किछि नाही, सुनीता साइड रे किछि नाही, तो सेति पे ब्लैंक को एठी ब्लैंक मैच करि गेला। जो मानकर रीजन किछि नाही ब्लैंक अछि सेगुडा पळे आसला। एबे जदि मु एठी एंटर करछि साउथ रीजन, साउथ रीजन रे जति की एम्प्लॉई अछन फिल्टर हेक पळे आसले। यदि मैं एंटर करछि एठी वेस्ट, सो वेस्ट रीजन रे जति की एम्प्लॉई अछन फिल्टर हेक पळे आसले। सो दिस इज द यूज केस ऑफ लाइक तमे जोठी भी कोडी गोटे एमदी गोटे ऑप्शन दे परिबो ए सेल रे जहां एंटर करिवो ता अकॉर्डिंगली तुमको रिजल्ट फिल्टर हेकी एठो फेच हेकी आसी के देखे दो। ओके, आउ एठी तमे चाहिले यूनिक भी यूज कर परिबो। खाली यूनिक सपोज माने एम्प्लॉई मानकर रिकॉर्ड गुडा रिपीट न होई कि एम्प्लॉई मानकर रिकॉर्ड गुडा रिपीट न होई कि माने थरे थरे देखे सेति भाई यूनिक करी गोटे फंक्शन अछि। से यूनिक फंक्शन भितर मु एंटायर फिल्टर कॉलम टा आई मीन फिल्टर फंक्शन टा को पास कर दे। तो यूनिक रे खाली गोटे माने एरे टा तमे पास करले चलिबो आ बाकी सब ऑप्शनल। ओके, ईस्ट साउथ
Okay, तो एम्प्लॉय मान नेम केवल थरे ही देखिए यूनिक रे कौन हम कि ओनली यूनिक वैल्यूज मान पायल जदि 3 थर साउथ रीजन रे थिबो ऑब्वियसली एठी पायल जदि हम देखिबा एठी साउथ रे पायल नॉर्थ अछि। ओके साउथ रे जदि दीटा सपोज को भी एम्प्लॉय पायल एठी नॉर्थ जदि मु नॉर्थ रीजन देखिबी तो पायल रो 2 थर अछि तो मु एठी नॉर्थ एंटर करले साउथ रे भी अच्छे पायल साउथ रे गोटे थर अछि ना। आज्ञा हाँ, तो मु एठी कोन कहूची कि देखो मु जदि यूनिक टा हटेଇ देला माने पायल साउथ रे 2 थर अछि माने से 2 थर फेच करके आनिबो सॉरी पायल नॉर्थ रे 2 थर अछि माने 2 थर पायल आसिला देखुछ बट पायल होची गोटे सिंगल एम्प्लॉय तो ताको 2 थर देखिबा दरकार नहीं मते किछि तो सेति पई हम जदि खाली यूनिक रिकॉर्ड देखिया को चाहूची तो ये बुझि परछ ना कोन व्हाट व्हाई आई एम यूजिंग दिस यूनिक फंक्शन। यस सर यस यस सर यस तो एठी पायल थरे आस ओके so now that's all about filter. Now let's move to the data validation. So why do we use data validation and why there is a requirement of data validation? For suppose as a data analyst we need data. Okay, there are various resources from where we can get the data. Data code आसीबो बीट डेटाबेस ରୁ ଆସିପାରେ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ରେ ଏକ୍ସେଲ ସିଟ୍ ରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଇପାରେ ଅଲରେଡି CSV ଫାଇଲ ହଉ डिफरेंट मीडियम्स अच्छी डेटा हमें आसीबार तो सपोज किसी गोटे कंपनी कौन କରୁଛି तार जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स अछंती तांको थ्रू रे किछि डेटा कलेक्ट करछि मार्केट रिसर्च करके मार्केट रू कलेक्ट करछि किछि डेटा फॉर सपोज तमे माने मॉल रे देखिथिबो कि तम मानकु किछि गोटे फॉर्म देकी ताको फिल अप करियो कोनती कांटेक्ट नंबर ये सब लकी ड्रॉ चलछि ये चलछि गोटे गोटे माने मार्केटिंग गिमिक कि तम मानकु एमदी गोटे କିଛି ଗୋଟେ ଅଫର ଟାଇପ ର କହିକି ତମ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟା କଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିसेସ୍ କୁ ତୁମକୁ ଅଫର କରିବେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ସେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟିଂ ଡେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ସ ସରି ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ବା ମାର୍କେଟିଂ ପିପଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଟା କଲେକ୍ଟ କଲେ ତାପରେ ଡେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେମାନେ ଡେଟା ଏଣ୍ଟର କଲେ କଲମ ରେ ଡେଟା ଏଣ୍ଟର କଲା ପରେ ତମକୁ ତାପରେ ଡେଟା ଆଭେଲେବल ମିଳିଲା ତମେ ସେ ଡେଟାକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଯୋଉ ଟାଇପ ର ତମେ ପ୍ରୋସେସ କରିବା କଥା ଯୋଉ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रे आनिबा କଥା ओके तो बिकॉज डेटा एंट्री ऑपरेटर जेतବେଳେ डेटा एंटर करथियो बहुत सारा मिस्टेक भी हेई पारे से जगह रे सपोज एज कॉलम रे से बाय चांस कार नेम भूल एंटर हेई जाईची कि एज कॉलम नेम कॉलम रे डेट बाय चांस एंटर हेई जाईची भूल रे ओके तो एमदी बहुत सारा इशू थिबो डेटा संगे जहा को तमे गोटे क्लीनिंग आउट जो डेटा वैलिडेशन कुआ जाए डेटा प्रोसेसिंग कुआ जाए क्लीनिंग वैलिडेशन ये सब परफॉर्म करिया पड़ियो तुमको जो थे कि 80% ऑफ द टाइम जाए डेटा एनालिस्ट मानकर बा डेटा साइंटिस्ट मानकर 80% ऑफ द टास्क गोज इन डेटा प्रोसेसिंग डेटा टाको प्रॉपर फॉर्मेट रे आनिबो तो सेई इशूटा न आसु आमे जेतेबेले गोटे सीट फॉर सपोज डेटा एंट्री ऑपरेटर जो सीट यूज करूचंदी से सीट रे मु कोन करबी कि जो कॉलम मते दरकार सपोज एज कॉलम अछि तो मु एठी गोटे डेटा वैलिडेशन रूल अप्लाई कर देबी कि ओनली एज ही नंबर ही एंटर हे परिबो नंबर को छाडी के किछि एंटर हे परिबो ओके सो एमदी बहुत सारा रूल्स अछि डेटा वैलिडेशन अंडर रे कि से कॉलम रे खाली सेही टाइप रो वैल्यू अलाउ होबो आउ किछि वैल्यू अलाउ होबो नेम एज कॉलम रे जदी तमे बाय चांस नेम एंटर करिया को चाहतो इट विल throw you error. It won't allow you to insert name. Okay. So now let's go ahead and see how we can do that. Right. This is my age column, and in this particular column, I've selected the entire column. Control Shift down arrow. Now to apply the data validation rules, we need to go to the data tab. Under data tab, we have data validation option. Again, under data validation, we'll get another data validation option. And when we click on that data validation, by default, we all know that each cell of Excel allows any value. Okay. इस सेल रे को भी वैल्यू अलाउ हे परिबो मु ड्रॉप डाउन टाइम रे कहतली कि तमे नेम दियो एज दियो कांटेक्ट नंबर दियो एनीथिंग यू कैन एंटर डेट सब किछि एठी एंटर हे परिबो कि ये सेल सब किछि अलाउ करियो बट मु जदी एठी खाली एज इंसर्ट करिया को चाहूची तो
एनी वैल्यू रू चेंज करके हमें होल नंबर ए ड्रॉप डाउन रे हमें होल नंबर करते परिबा। तो होल नंबर माने एज टा ऑब्वियसली होल नंबर ही हबो, डेसिमल हबनी कि हमर स्ट्रिंग एज इज नॉट अ स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, सो होल नंबर खाली एंटर ही परिबो, हमें एनी वैल्यू रू चेंज करके होल नंबर कर दे। ओके, आउ डेटा कौन तमे कंडीशन केमती दबाकू चाहूछ, जो कंडीशन टा दबो तुम जो एज एंटर हो, मिनिमम एज केते मैक्सिमम एज केते, if you are selecting between then you will get these two options, minimum and maximum. If you are selecting equals to then you will get to enter only one age. Okay, and not equals to ई एज टाକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ବାକି ସବୁ ଏଜ ଇନସର୍ଟ ହେଇପାରିବ। लेस देन सपोज एज जहाँ भी इंसर्ट हबो 60 रू लेस देन हवा दरकार। Various options are there, you can explore it, किसी difficult जिनिस नो, you can play around. Okay, now minimum, I'm taking the between option, and here the minimum age I'm entering is 18 and maximum is 60. minimum age 18 and maximum 60, तो मुझे यदि 18 एंटर करची, entering 18, 18 अलाउ है गला, यदि 19 एंटर करची 19 भी अलाउ है गला। ओके, 30 60 50 got allowed, but मैं 17 एंटर करिया को यदि ट्राई करीबी, this value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. ओके, हमें 18 ରୁ 60 भितर ही एंटर करिया पे होल नंबर हमें सेलेक्ट करछि डेटा वैलिडेशन रूल। 17 को ऑब्वियसली अलाउ करिवनी, जदि 61 करिया ट्राई करछि 60 रू एक्सीड करि जाउछि रेंज, एटा भी अलाउ करियो ट्राई करिवनी। मु जदि नेम एंटर करछि एटा भी अलाउ करिवनी, ओनली होल नंबर इट विल अलाउ, एंड द रेंज इज बिटवीन, जो जाय मु एठी 18 ରୁ 60 ଭିତରେ ଏଣ୍ଟର କରିନି ସେ ସେବେ ଯାଇ ମତେ ଇନସର୍ଟ କରିବାକୁ ଦବନି। ଓକେ, ଏଟା ଦେଖିଲେ ହୋଲ ନମ୍बर। डेसिमल वैल्यू जदि मु चाहूची एठी 18.9, डेसिमल वैल्यू भी अलाउ करिवनी। होल नंबर मींस होल, ओनली होल नंबर्स आर अलाउड। ओके, now let's hello hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. yes, कि म्यूट कलो कि तुम मित्र मते No, sir. ऑटोमेटिकली केमति म्यूट हे जो ମୋ ଭଏସ ଆସୁଥିଲା ତ ସାର୍। आସୁथिला, you are muted just ଆଜ୍ଞା संगे संगे आसिला प्रॉम्प्ट हैला तो कि म्यूट कलो तो सेति भाई you are muted शो कला। ओके, so data validation, under data validation we can go and whole number हमें देखिले। now from whole number to I can change it to decimal, suppose decimal values मु नबाकू चाहूची और decimal रे मु सेई 18 ରୁ 60 रेंज एबे दबाकू चाहूची। ओके, डेसिमल वैल्यूज पॉइंट्स रे वैल्यू नबाकू चाहूची, तो होल नंबर पई हमें डेसिमल वैल्यूज एंटर कर पानथले, बट डेसिमल पई हमें होल नंबर्स एंटर कर परिबा। ओके, एठी हमें चाहिले 18.9 नहीं परिबा, 20.3, तो एठी डेसिमल वैल्यूज भी नहीं परिबा, एथरे होल नंबर भी एंटर, डेसिमल रे होल नंबर भी अलाउ करिबा और डेसिमल दीटा जगह अलाउ करिबा, बट in case of whole numbers it won't allow you to enter any decimal values. Okay, point values. Then we have after decimal we have list तो हमें drop down create करे पे use करे। date also we can validate, suppose date हमें ले तो date should be between equals to today -10
equals to today. डेट कौन हम आज जो डेट से 10 days बिफोर आ करेंट डेट भितर जहाँ डेट हम आज है 18 जनवरी 8 हो 18 भितर जहाँ भी डेट हम ओनली से डेट गुड़ा को अलाउ करिवो बाकी डेट को अलाउ करिवोनी ओके तो एठी इक्वल्स टू टुडे लिखुची डेट को अलाउ कर देला जदि एठी 19 इंसर्ट करछि 1901 2025 अलाउ करिवोनी बिकॉज़ आमे नै जे कोन 8 रू 18 भितर माने मु टुडे -10 लिखली स्टार्ट डेट एंड डेट हला टुडे आरे भितर जो डेट आमे इंसर्ट करबा नबो बाकी डेट्स गुडा को नबो ओके सेमती डेट परे हमर अछि टाइम वी कैन वैलिडेट टेक्स्ट लेंथ वी कैन वैलिडेट सपोज गोटे नेम कॉलम मु करछि और नेम कॉलम रे मु चाहूछि मैक्सिमम टेक्स्ट लेंथ अलाउ करिया पई 5 ओके 5 रो अधिका जेमती टेक्स्ट लेंथ हबनी जहार भी नेम 5 रो माने टेक्स्ट लेंथ हमें एठी सेलेक्ट करले आउ बिटवीन एठी न दे की इक्वल्स टू मु देली 5 मीन गोटे 5 भी हवा दरकार एटलीस्ट टेक्स्ट लेंथ otherwise it won't allow मु लिखुची एठी सूर्या अलाउ हे गला रमेश अलाउ हबनी एठी बिकॉज़ 5 कैरेक्टर्स को एक्सीड करियला 5 रु कम हेले भी अलाउ होनी 5 रु अधिक हेले भी अलाउ होनी और जब तुम गोटे स्पेसिफिक रेंज दबाक चाहू 3 रु नै की 5 जाए तुम बिटवीन यूज करके दे दो so now you see there is one custom option here we can type any formula to validate for suppose I want to validate a contact number ना एबे गोटे column create करिवा where I want to validate the contact numbers okay so contact numbers the total length of contact number should be 10 and all the elements should be digits okay all the 10 elements should be digits or numbers okay so for that I have to use 1 minute गोटे फोन नंबर को वैलिडेट करियो फोन नंबर कोन हो कि लेंथ जोटा 10 डिजिट्स हवा दरकार और सब नंबर ही हवा okay for that let's go to data validation and here I'll be choosing one custom formula equals to and function I'll be using here so and रो कोन हो and भीतर हमें मल्टीपल कंडीशन दे परबा तो एक्सेल रे एमती नाही कि जे तमे गोटे कंडीशन लिखिलो तापरे एंड दे कि आ गोटे कंडीशन एमती लिखिबो एक्सेल रे एंड ता होची गोटे फंक्शन तो एंड आगो फंक्शन लिखिबो ता भीतर जते मल्टीपल तमे कंडीशन लिखिबो तब पैरेंथेसिस भीतर तमे लिख करिवो तो एठी मु दीटा कंडीशन देबी फर्स्ट हला कि लेंथ फंक्शन लेन फंक्शन यूज करके हमें लेंथ कैलकुलेट करे लेंथ माने मु एंटायर कॉलम ऊपर अप्लाई करिवि मन रखो एंटायर कॉलम ऊपर डेटा वैलिडेशन कंडीशन अप्लाई करिवि बट मु जेतबेले फंक्शन भीतर सेलेक्ट करछि सेल तो गोटे ही फर्स्ट सेल टाको ही सेलेक्ट करले बाकी सब सेल ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जिवो मते एंटायर कॉलम सेलेक्ट करबा किसी दरकार नहीं ओके एंटायर कॉलम ऊपर अप्लाई हो जिवो ऑटोमेटिकली बट मु खाली जदी फर्स्ट सेल टाको इफ आई सेलेक्ट ओनली A2 that is fine after length comma then I will give length for is number हमें नंबर की नहीं चेक करबा जो 10टा वैल्यू एंटर हबो एलिमेंट ऑल शुड बी नंबर इज नंबर रे भी मु से फर्स्ट सेल टा को ही सेलेक्ट करली A2 एंड भीतर ये दीटा फंक्शन पास करली माने लेंथ ऑफ A2 शुड इक्वल्स टू 10 माने ये सेल रे जो भी वैल्यू एंटर हबो तार लेंथ 10 हबा दरकार और इज नंबर
इज नंबर फंक्शन ର କାମ କଣ ହେଲା କି ଏ ସେଲ ରେ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ନମ୍बर ହିଁ ଏଣ୍ଟର ହେଲା ତାହେଲେ ଇଜ ନंबर ଆମକୁ ଟ୍ରୁ ରିଟର୍ନ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ପାଇଁ ତମେ ଜାଣିଥିବ କି ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଟ୍ରୁ ରିଟର୍ନ ହେଲା, ଯାହା ବି ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ଦିଆହେଇଛି, ମାନେ ଲେନ୍ଥ ଯଦି 10 ହବ, ଲେନ୍ଥ 10 ହେଲେ ଟ୍ରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ନମ୍बर ଥିବ ତାହେଲେ ବି ଟ୍ରୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ତମେ ଦେଇଛ କଣ୍ଡିସନ, ସବୁ ଯାକ ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ଯଦି ଟ୍ରୁ ହେଲା ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଟ୍ରୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଆଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ ରିଟର୍ନ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ବି କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛ ଅଲ୍ ସୁଡ୍ ବି ଟ୍ରୁ, ଦିଟା ଯାକ କଣ୍ଡିସନ ଟ୍ରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହବା ଦରକାର, ଦେନ୍ only and will return true. Okay, If anyone something wrong, and then the result will be showing wrong. correct. See, देखो and means and or ये सब ऑपरेटर तब मैंने जानी थी, ऑलरेडी आइडिया थी वो and or not एगुड़ा सब स्कूल टाइम रे पढ़ा जाइतला। ओके, and or not रो ट्रुथ टेबल पढ़थिबो। and रो माने दीटा जाको जदी ट्रू हबो देन and सपोज हम दीटा कंडीशन देइचे and भीतर कि पांचटा कंडीशन देइचे, ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू। ओके, ताहले जाई कि and ट्रू रिटर्न करबो। और रे कोन हुए एइटा नहले एइटा दीटा भीतर जोटा भी गोटे ट्रू आसिले और ट्रू रिटर्न कर दो। ओके, बट and for and condition all condition needs to be matched। so length 10 हबो and function भीतर and टा हमें केमती लिखे एठी 1 मिनिट। हेलो हेलो सर। हेलो, सो जदि हमें दीटा कंडीशन दउचे लेंथ ऑफ a2 इक्वल्स टू 10, यस बाबुली डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲାନି ତ। नहीं मु कहि कि जाइथिलि बा 1 मिनिट। ओके, सो यस, फॉर सपोज दीटा कंडीशन मु दउची लेंथ ऑफ a2 रो लेंथ 10 हवा दरकार ଆଉ ସବୁ ଯାକ ନମ୍ବର ହବା ଦରକାର। ଏ ମାନେ A2 ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲମ, ମୁଁ ଆଗ ସେଲେକ୍ଟ କଲି ଦିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲମ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଡେଟା ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ରେ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଏଇ कंडीशन ଟା। तो ये जो कंडीशन टा ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ସେଟା କଣ ହବ, ମୁଁ ଖାଲି A2 ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ବଟ୍ कंप्लीट कॉलम ऊपर से ऑटोमेटिकली अप्लाई है। ओके, तो ये जो दउची दीटा कंडीशन लेंथ ऑफ A2 शुड बी 10 एंड सब गुडा नंबर हवा दरकार। तो ये जो दीटा कंडीशन को एमिति एंड दिया जाए नहीं एक्सेल केम दिया जाए कि एंड होची गोटे फंक्शन इक्वल्स टू एंड लिखले ता भीतर जेते कंडीशन हम लिख परिया, सब कंडीशन जेतेबेले मैच करिवो देन ओनली एंड विल रिटर्न ट्रू। तो हम एटी दीटा कंडीशन देइजे लेंथ 10 हवा दरकार, नंबर सब जाक नंबर हवा दरकार। लेट्स सी 637096868 ओके, डेट रे अछि नंबर कन्वर्ट कर दो जनरल। ओके, तो आसीगला नंबर इंसर्ट हो गला, एक कंप्लीट कॉलम टा को जनरल कर दो। ओके, नंबर हो गला एंटर हो गला, जदि 10 डिजिट्स रो नंबर देले फॉर सपोज मु दउची 63450, पांचटा डिजिट रो नंबर देली, एंटर करबा को देलानी। ओके, तो नंबर संगे मु सपोज किसी ई सेम नंबर मु इंसर्ट करबी, बट एठी कोन करबी लास्ट रे गोटे कैरेक्टर ऐड कर दूची, आकु भी इंसर्ट करबा को देलानी। तो दीटा जाको कंडीशन हमर चेक होउची, लेंथ 10टा हवा दरकार और सब जाको नंबर हवा दरकार। दीटा भीतर गोटे भी सर जदी फॉल्स डेसिमल नउची कि ना डेसिमल इट वोंट अलाउ सी। ओके, सब जाको नंबर हवा दरकार और लेंथ शुड बी 10। ऑल क्लियर? यस नो? यस सर। ओके, सो असाइनमेंट हला तम मानको पई कि पैन नंबर को हमें एमती केमती वैलिडेट करबा, जेमती कांटेक्ट नंबर को हमें वैलिडेट कले। सो जस्ट लाइक दैट क्रिएट वन कॉलम एंड गोटे कस्टम फार्मूला लिखो
चैट जीपीटी रो भी हेल्प नहीं पारिबो बट निजे बुझिबो कि कोन केमति लिखछि। तो अब पैन नंबर को केमति वैलिडेट करियो। ओके, तो से दैट विल बी द योर असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट सेशन। सेटा कंप्लीट करके आस्थिबो मंडे जाय केमति हमें पैन नंबर को जेमति फोन नंबर को वैलिडेट कला हाउ वी कैन वैलिडेट द पैन नंबर। ओके, so now we have clear about the requirement assignment clear hela guys? Yes, sir. Okay, now under data validation we have other options means suppose तमे सेल गुडार किछि इनपुट मैसेज देखिया को चाहछो एरर अलर्ट भी चेंज कर परिबो। एरर अलर्ट तीन टाइप रो अछि गोटे हला स्टॉप। बाय डिफॉल्ट वी आर गेटिंग द स्टॉप एरर मैसेज मींस if you are inserting incorrect values in your cells then it won't allow you to insert values until and unless you enter the correct value। ओके, तो स्टॉप बाय डिफॉल्ट ये स्टॉप टा सिलेक्ट हेकी थाए जो जाय तुम करेक्ट वैल्यू इंसर्ट करिनो डेटा वैलिडेशन कंडीशन हिसाब रे इट वोंट अलाउ यू टू इंसर्ट इनटू दिस सेल। जेबे जाय तुम करेक्ट वैल्यू देइनो से इंसर्ट करियो अलाउ ही करिवो सेमदी एरर देई चलथिबो करेक्ट वैल्यू न दबा जाय अलाउ करिवो। बट मु जदी स्टॉप रो वार्निंग को सेलेक्ट करिवि वार्निंग कोन करिवो मते खाली गोटे वार्निंग दबो बट मु जदी से वार्निंग को पढे कि यस क्लिक कर देबी देन एंटर हे जिवो वैल्यू। ओके, सो मैं वार्निंग रे सेलेक्ट कली। ओके, वार्निंग रे प्लीज एंटर वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज एंटर अ वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, मैं जो कॉलम टा सेलेक्ट कली से कॉलम रे मु कोन कली एरर अलर्ट रे जाई कि वार्निंग सेलेक्ट कली। ओके, इंस्टेड ऑफ स्टाइल अछि तीनटा डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप वार्निंग एंड इंफॉर्मेशन। स्टॉप बाय डिफॉल्ट है जोटा कि हमको अलाउ ही करेनी until and unless हमें करेक्ट वैल्यू एंटर कर। if I select warning it will only give me a warning। okay, so let's see I'm trying to enter 53, it is not a valid contact number, it is asking me please enter a valid contact number, continue। if you want to continue you can click on yes तो ये इंसर्ट हेगला बट स्टॉप रे ये तुमको अलाउ ही करना था जो जाय तुम्हें करेक्ट नंबर न देछ। देन सिम्पली वी हैव इन्फॉर्मेशन हियर एटा खाली यस नो किछि पचारिबोनी भी खाली तुमको इन्फॉर्मेशन गोटे दबो प्लीज एंटर अ वैलिड कांटेक्ट नंबर यदि एठी 24 इंसर्ट करछि प्लीज एंटर अ वैलिड कांटेक्ट नंबर। ओके, यस नो भी पचारिबोनी ओके क्लिक करले सेंटर हे तीनटा डिफरेंट एरर मोड्स अछि। एरर अलर्ट इनपुट मैसेज रे तुम चाहिले इस सेल रे किछि मैसेज डिस्प्ले करिया पई all the contact numbers should be of 10 digits। ओके, एठी जो सेल रे तुम माने सेलेक्ट करले कोन होबो हम एटा कंप्लीट मु कॉलम ऊपर अप्लाई कर पलिने कंप्लीट कॉलम ऊपर अप्लाई कर दो all the contacts should be of 10 digits। so इंटरव्यू रे कंडीशनल आई मीन डेटा वैलिडेशन ऊपर एमती बेसिक किछि क्वेश्चन रेयरली के पचारि परंती बट तुमको किछि करिवा पई देबेनी बहुत माने ना मु एबे जे इंटरव्यू रे किछि एमती डेटा वैलिडेशन ऊपर क्वेश्चन फेस करछि ना कोई स्टूडेंट एते फेस करंती बहुत रेयर चांस अछि डेटा वैलिडेशन ऊपर बट रियल टाइम रे तुम इंप्लीमेंट करि पारा। ओके, जो सेल मु सेलेक्ट करबी से मते बस ए इंफॉर्मेशन टा डिस्प्ले कर input message। okay, so that's all for the data validation। let's move to the conditional formatting quickly। conditional formatting भी simple हमें एठी किछि rules basis रे जो सेल गुडा को हमें हाइलाइट कर परबा बा रो गुडा को एंटायर रो को हमें हाइलाइट कर परबा। for suppose
I have few basic questions I have added. Highlight all the students who are having total marks more than math marks more than 50. So if I select this entire column and if I go to conditional formatting tab or home tab, you will get the conditional formatting under this home tab. Conditional formatting ऊपर click कले ये ऑप्शन अच्छे highlight cell rules. तो highlight cell rules रे कौन greater than जोठी math results greater than 50 ମୁଁ ଖାଲି math column select करছি ଆଉ जोठी math result greater than 50 सेठी suppose ମୁଁ greater than 50 रे ମୁଁ green color रे highlight କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. ओके कस्टम फॉर्मेट को गली और fill रे green color select कली hit ओके सो से नंबर गुडा हाईलाइट हे गला जोठी math mark more than 50. Highlight cells where English mark is less than 30. सही सेल गुडा हाईलाइट करबा जोठी इंग्लिश मार्क लेस देन 30. ओके तो इंग्लिश कॉलम सेलेक्ट कली and here you can go to the highlight cell rules less than 30. Okay now greater than less than रहला between suppose between and আমি কিছু দବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି इंग्लिश मार्क जोठी इंग्लिश मार्क छाड़ तो suppose सेल्स अमाउंट रे मु एठी between दବାକୁ ଚାହୁଁଛି तो जोठी सेल्स अमाउंट between 10,000 ରୁ ନେଇକି 20,000 ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट एथरे हाईलाइट कर ओके हाईलाइट हे गला जो गुडा 10,000 ରୁ ନେଇକି 20,000 ଭିତରେ सेल्स अमाउंट अछि सेमती हमरो इक्वल्स टू हम जदी किछि स्पेसिफिक सपोज जोठी एम्प्लॉय नेम रे जोठी हमरो आशीष अछि इक्वल्स टू आशीष ओनली सेही वैल्यू गुडा को हाईलाइट कर ओके देन टेक्स्ट दैट कंटेन्स गोटे सपोज जोठी टेक्स्ट स्टेट गुडा रे जोठी पी थिबो ओनली सेही स्टेट को हाईलाइट करिवो से ऑप्शन भी सर अछि एटा हमरो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यस कंडीशनल कंडीशन हिसाब रे तमरा हाईलाइट करिवो कंडीशन सेल्स हो फॉर्मेटिंग ओके हम्म यस सेल्स हो किबा हम एठी इंडिविजुअल सेल को हाईलाइट करछे चाहिले हमें रो को भी हाईलाइट कर परिबा ओके डेट ऑकरिंग सपोज मु एठी एटा सब तमे जे प्ले अराउंड कर परिबो यू कैन एक्सप्लोर एथरे किछि माने बहुत बेसिक जिंस एगुडा किछि सेमती कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डेट ऑकरिंग फॉर सपोज डेट लास्ट वीक रे जो डेट गुडा आस्थिला से गुडा हाईलाइट हे जिवो आउ टुडे आज रो डेट हाईलाइट हे जिवो तो मु एठी डेट आजी मु एंटर करनी एठी टुडे फंक्शन मु लिखि देछि ऑलरेडी से कोन करछ ऑटोमेटिकली एवरी डे इट विल कीप अपडेटिंग आज रो हिसाब रे से अपडेट कर चलो बाकी गुडा सब टुडे -1 टुडे -2 एमती लिख देछि तो ऑटोमेटिकली से अपडेट हे चलछ नाउ डुप्लीकेट वैल्यूज आल्सो तमे सपोज एठी लेट मी क्लियर रूल्स को क्लियर करया पई एठी जोठी भी क्लिक करलो एठी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की गलो एंड हियर अंडर क्लियर रूल्स ऑप्शन क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कर परबो एंटायर शीट कले जेते भी तमे से ए पर्टिकुलर शीट रे जहां भी तमे अप्लाई करजो सब से क्लियर कर दो जदि सिलेक्टेड सेल्स रो करया चाहतो ताले से सेल गुडा को सिलेक्ट करिवो देन एटा क्लिक करिवो फॉर टाइम बिंग आई विल बी क्लियरिंग रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट क्लियर हे गेला नाउ डुप्लीकेट वैल्यूज हमें जदी सपोज आपको स्टूडेंट नेम रे डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट करियो चाहिबा जो नेम गुडा रिपीट हेची बारंबार से गुडा हाईलाइट हे गेला डुप्लीकेट वैल्यूज देन टॉप बॉटम रूल्स top 10 sales amount so suppose we want to see top 10 items okay एगुडा हला top 10 sales amount now bottom 10 sales amount हला कि bottom 10 math marks हला सेगुडा सब हम देखि पारे एठी पुणी author clear rules कर selected sales now bottom 10 items माने bottom 10 रे को sales amount गुडा अछि सेगुडा देखि परिबा now
टॉप 10 परसेंटेज वाइज देखो कंप्लीट सेल्स अमाउंट रे 47,000 रो 47,000 इज कंट्रीब्यूटिंग टू 10%। ओके, टोटल जदि हमें सम करवा तार 10% आसीबो 47,000 ओनली। ओके, तो एंटायर सेल्स अमाउंट रे 10% आसी 47,000। एंटायर सेल्स अमाउंट को जदि सम करा जाए तो जति की टोटल वैल्यू आसीबो तार 10% होची खाली 47,000 ए अमाउंट। यदि मु 10% 15% देखिବାକୁ चाहूची, ओके 15 14% 15% देखले टोटल सेल्स अमाउंट रो 15% रे आसी 47,000 प्लस 28,000 ए दीटा मिसिले जति की हबो से टोटल सेल्स अमाउंट सम रो 15% आसी। तो मैं परसेंटेज वाइज भी 10% 15% 20% देख परिबी टोटल सेल्स अमाउंट। ओके, नाउ सेमदी बॉटम 10% एबव एवरेज माने टोटल जति की सेल्स अमाउंट अछि सबको सम करिवा देन जो 15 टा जति की सेल्स अमाउंट अछि काउंट 15। ओके, सम हला 23,000 2,37,100 ताको हमें डिवाइड करिवा 15 रे तो हमको एवरेज अमाउंट मिले। ओके, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और सेल्स अमाउंट। टोटल सम है 2,37,100 ताको हमें 15 रे डिवाइड कले 15 टा रिकॉर्ड अछि तो हमको एवरेज जति मिलला 15,806। तो से 15,806 एवरेज अमाउंट को सेल्स अमाउंट गुडा अधिक अछि। ओके, तो से गुडा हमरो हाईलाइट है। एबव एवरेज बिलो एवरेज देन वी हैव डेटा बार्स बार हिसाब रे फिल अप कर परिबो कि हाईएस्ट अमाउंट को सबटो हाईएस्ट बार मिल छी तापरे सेही हिसाब रे डिक्रीज हे चलची बार एगुडा सब प्ले अराउंड कर परिबो। कलर स्केल्स आइकन सेट्स सपोज आइकन सेट्स मेठी क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट आइकन सेट्स को गले आइकन सेट्स अंडर रे मु सपोज किछि मोर मैनुअल रूल कस्टम रूल किछि दबाउ चाहूची तो मोर रूल्स को जिबा एठी फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज आइकन सेट्स रे मु आइकन सेलेक्ट कली एठी सपोज डिफरेंट डिफरेंट एरोज अच्छी तमे एरो सेलेक्ट कर परिबो वैराइटीज ऑफ ऑप्शंस आर देयर। तो मु एठी सेलेक्ट करछि सपोज तीनटा एरो रेड येलो एंड ग्रीन। ओके, देन व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40,000 जेतोल वैल्यू 40,000 रो ऊपर को थिबो ताले मते ग्रीन एरो देखिबो बट एठी मन रखो टाइप बाय डिफॉल्ट परसेंटेज रे थिबो। ओके, परसेंटेज रो नंबर को चेंज करबा को भूलिबोनी नंबर को चेंज न कले से परसेंटेज वाइज दउथिबो तमे भाबुथिबो एठी 47 40,000 ऊपर को काहे की हाईलाइट होनी आई मीन ग्रीन एरो आसुनी तो फर्स्ट आपको नंबर को चेंज करिवो परसेंटेज रो देन व्हेन वैल्यू इज greater than equals to 40,000 then green arrow when value is less than 40,000 and greater than equals to 25,000 then yellow arrow ଆଉ 25,000 ରୁ ଯାହା ବି କମ ଅଛି ସବୁ ରେଡ୍ ଆରୋ जो सेल्स अमाउंट 40,000 ରୁ ଉପରକୁ ଅଛି 40,000 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଉପରକୁ ଅଛି ସେଠି ग्रीन एरो ଆଉ 40,000 ରୁ କମ ଆଉ 25,000 ଭିତରେ जो सेल्स अमाउंट आछि येलो एरो 25,000 ରୁ କମ ଯୋଉଗୁଡା ସେଟା रेड एरो ଆସିଗଲା। ओके, तो एमती भी हमें एरो वाइज शो कर परिबा बहुत सारा एदरे ऑप्शन अछि छोटो मोटो तमे जाई एक्सप्लोर करि परिबो YouTube ये रे देखि कि माने एगुडा एते कॉम्प्लेक्सिटी किछि नाही तो इन डेप्थ एमती किछि एक्सप्लेन करिया दरकार नै। तो आइकन सेट्स देखले एबे हम देखिबा कि गोटे इंडिविजुअल सेल गुडा को हम हाईलाइट करथले कंप्लीट रो को केमते हाईलाइट करियो फिर सपोज मु जेतो एठी गोटे ड्रॉप डाउन क्रिएट करिवा ड्रॉप डाउन नु जहां मु सेलेक्ट करबी यदि फेल सेलेक्ट करछि फेल रो गुडा हाईलाइट हे जिवो यदि मु पास सेलेक्ट करछि पास गुडा हाईलाइट okay let's see that so to conditional formatting हमको को टैब रे मिलिबो होम टैब रे
आउ डेटा वैलिडेशन पे हमें डेटा टैब को जाउथले सो टैब गुडा मन रखिबो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब रे मिलिबो डेटा टैब रे हमको मिलिबो डेटा वैलिडेशन ऑप्शन ओके सो डेटा टैब को गली मते एठी गोटे ड्रॉप डाउन क्रिएट करिवार अछि अंडर डेटा वैलिडेशन आई विल गो टू सेटिंग्स केमती ड्रॉप डाउन क्रिएट करा जाय तो माने जानि छ एनी वैल्यू रु लिस्ट को सिलेक्ट करिबा देन मते ड्रॉप डाउन में दीटा वैल्यू देखियार अछि इधर पास और फेल ओके तो मु दीटा वैल्यू को सिलेक्ट एंटायर कॉलम सिलेक्ट न करिकी दीटा वैल्यू फेल पास सिलेक्ट कली तो ड्रॉप डाउन क्रिएट हेकी आसीला दीटा वैल्यू अछि इधर फेल और पास ओके नाउ एंटायर रो को हाईलाइट करबा कहला मते एंटायर टेबल को एठी सिलेक्ट करिया पड़िबो कंप्लीट रो को जदि मु सिंगल सेल हाईलाइट करिया को चाहूची तो गोटे कॉलम सिलेक्ट कले हे जो बट मते एठी एंटायर रो को हाईलाइट करिवार अछि तो मु सब कॉलम गुडा सब एंटायर टेबल को सिलेक्ट करी गो टू होम टैब कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल ओके कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल रे तो हम क्लिक करबा लास्ट रे गोटे ऑप्शन अछि यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट माने हमें कस्टमाइज फार्मूला किछ लिखि परिबा हम साइड रू तो कोन हबो कि सेही हिसाब रे फॉर्मेट हबो सेल गुडा ओके तो एठी कोन फार्मूला हम लिखिबी हियर इक्वल्स टू दिस रिजल्ट हिसाब रे जोटी फेल थिबो से कंप्लीट रो हाईलाइट हबो जोटी पास थिबो से कंप्लीट रो हाईलाइट हबो तो मु रिजल्ट कॉलम रो ही फर्स्ट सेल टा को सिलेक्ट कली इको माने जार एड्रेस हला P4 ओके ये सेल रो एड्रेस हला P कॉलम एंड फोर्थ रो सो P4 ही सिलेक्ट हे के आसला एठी दीटा माने कॉलम पूर्वर भी ऑटोमेटिकली डॉलर अप्लाई हेची रो पूर्वर भी ऑटोमेटिकली डॉलर अप्लाई हेची मैं एठी कॉलम टा को फिक्स रखिबी बट रो पूर्वर जो डॉलर टा लागि छि ताको म हटेइ देली 4 पूर्वर जो डॉलर लागितला ताको म हटेइ देली बिकॉज़ जेतेबेले मु पास किबा फेल जहां भी सिलेक्ट करिवि से सब रो रे जाई कि कंपेयर हवा दरकार और जदि 4 टा फिक्स हे जाता खाली सेही गोटे सेल रे ही कंपेयर हेता तो मु कॉलम टा तो फिक्स रखुची बट रो टा को फ्री कर दोची जो 4 पूर्वर डॉलर लागि के आस्तला बिकॉज़ मु पास किबा फेल जहां भी सिलेक्ट करिवि से जाई कि एठी सब रो संगे चेक करबा दरकार माने सब सेल रे चेक करबा दरकार तो हेति पई मु 4 पूर्वर हटेइ देली बिकॉज़ 4 फिक्स रहले सब रो माने सब सेल रे जाई कि चेक कर परिबन ओके इक्वल्स टू ए सेल रे जहां वैल्यू सिलेक्ट हेछि तो एठी मु फर्स्ट P4 माने ये टेबल रो जो रिजल्ट कॉलम रो फर्स्ट सेल टा को सिलेक्ट कली सेथरे P टा को फिक्स रखिली 4 टा ऊपर हटेइ देली डॉलर बिकॉज़ सब सेल रे जाई एठी जहां सिलेक्ट हेथिबो ड्रॉप डाउन रे ताको ईच सेल संगे जाई कि कंपेयर करिवो जोठी मैच करिवो सपोज पास सिलेक्ट हेछि सब सेल संगे कंपेयर करिवो जोठी पास संगे मैच करिवो सेगुडा हाईलाइट हे तापर जदि मु फेल सिलेक्ट कली सब फेल को नेकी सब संगे मैच करिवो जोठी फेल संगे मैच हला सेगुडा सब हाईलाइट हे फॉर्मेट येलो कलर हाईलाइट करिया चाहूची ओके देखो मैं पास सिलेक्ट करछि तो एटा पास गुडा खाली हाईलाइट हे गेला जदि मु फेल सिलेक्ट करछि फेल हाईलाइट हे गेल ओके पास सिलेक्ट कले पास फेल सिलेक्ट कले फेल जदि मु पास को गोटे डिफरेंट कलर देखिया को चाहूची और फेल को गोटे डिफरेंट कलर देखिया को चाहूची क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट तो मु कोन करिवि कंडीशनल फॉर्मेटिंग गली मैनेज रूल्स न्यू रूल गोटे क्रिएट करबा यूज ए फार्मूला इक्वल्स टू दिस फेल ओके से सेम सेलेक्ट कली P4 रो फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कली इक्वल्स टू एठी R4 रे जो जहां भी वैल्यू सेलेक्ट हेछि तापर मु गली एठी सब जोडी फेल सेठी रेड देखिया को चाहूची ओके सी गला गोटे कंडीशन मु ऐड कर देली जोठी फेल थिबो सेठी रेड देखि ओके इसला पुणी आउथरे मु एठी कोन करिवि इक्वल्स टू पास सेलेक्ट करिवि पास रे जाईकी
conditional formatting, manage rules, new rule, सर डाटा सिलेक्ट है sorry, डाटा सिलेक्ट करना माने से सीट टा सिलेक्ट करना हाँ करेक्ट, सीट टाକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ select କରିବା ଏଠି conditional formatting ଗଲି, manage rules ଏଠି ଯାଇକି new rule ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ equals to ये first P4 को select कली pass, then green color, okay दीटा रूल अप्लाई ହେଇଗଲା ଏଠି ଏଠି fail ପାଇଁ ବି green ଆସୁଛି, pass ପାଇଁ ବି green ଆସୁଛି, okay तो fail ପାଇଁ red କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଟା ହେଇଯିବ easily ମୁଁ କରିଥିଲି but ଏଟା ଏବେ just ଟିକେ problem କଣ ହଉଛି कि red P ଏଠି କଣ ଗୋଟେ slight changes ହବ ମୁଁ ସେଇଟା ମନେ ପଡୁନି ଏବେ edit rule equals to fail, let's see ଗୋଟେ simple କିଛି ଗୋଟେ minor changes ହବ but this is absolutely possible simple ଜିନିଷଟା but କଣଟା change ମୁଁ କରୁଥିଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେବି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯଦି ନହେଲା ନା next time ଦେଖିଥାଅ ନହେଲେ ତମମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବ easily YouTube ରେ କି କୋଉଥିରେ ବେଶୀ କିଛି difficult ନୁହେଁ ओके सर so P4 ହେଲା ଆମେ ନେଲେ ଏଇଟା first okay equals to R4 ଏଠି ଯାହା ବି select ହେଇଛି ତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜ ରୁଲ୍ସ ଯାହା ଅଲରେଡି ରୁଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ applies to H4 ରୁ P18 applies to H4 ରୁ P18 ପାସ୍ ହଟେଇଦବା ଏଠି okay so here it should come what is the ଇଜିଲି ଆସିବ ମାନେ ମୁଁ ଅଲରେଡି ବହୁତ ସେସନରେ ଦେଖେଇଛି ବଟ୍ ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡୁନି କି କୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ P4 ଆଉ R4 ଆମେ ଦିଟା ମାନେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଆମେ ଦିଟା ରୁଲ ସେଟ୍ କରିଦେଇଛେ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଥର ଗ୍ରୀନ ଆସିବ ଗୋଟେ ଥର ରେଡ୍ ଆସିବ ବଟ୍ ଏଠି this selected cells apply manage rules new rule use a formula equals to this dollar $t equals to conditional formatting manage rules new rule use a formula equals to fail P4 fail then red okay
ଗୋଟେ formula ହେଇଗଲା, then new rule, use a formula to determine equals to, one minute. Rules, new rule, use a formula equals to fail to fail rate, okay, okay, fail ଆସିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ select କରିବା, change କରିଦଉଛି pass କୁ, ଆଉ ଥରେ ଯିବା manage rules, ଗୋଟେ rule already apply ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ rule apply କରିବା, equals to, ଏଥର ମୁଁ suppose ଏଇଟାକୁ select କଲି pass, not green, okay, ନା ଏ ହଉନି କରେକ୍ଟଲି, ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ବେସିକ ଜିନିଷ କଣ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ଏଇଟା ଶୋ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ସେସନ, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କିଛି ମିଳୁଛି ଦେଖିଦେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ସେସନରେ ବି ମୁଁ ଶୋ କରିଦେବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ୍ଡିସନାଲ ଆଇ ମିନ୍ ପିଭଟ ଟେବଲ ଦେଖିବା, ସେଇ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଓକେ। ସୋ ଓକେ ୟା, ସାର୍। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫର ଟୁଡେ ସେସନ। ସାର୍ ଆଉ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ଏକ୍ସେଲ ର, ଦେନ୍ ଆମେ ଏକ୍ସେଲ ଏସକ୍ୟୁଏଲ କୁ ଏକ୍ସେଲ ଯାଇପାରିବୁ? ହଁ ଏକ୍ସେଲ ଆଉ 3ଟା 4ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍, ମାନେ ଯୋଉ ପିଭଟ ଟେବଲ ତମର ହେଇଥିଲା ନା ସେସନ, ଶଙ୍କର ସାର୍ ନେଇଥିଲା ନା ନେଇନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଯଦି। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଉ ତାପରେ ତା ସାର୍ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ହଁ ଯୋଉ ଆମର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ କ୍ରିଏଟ ରେ ଆମେ ସେଟା ବି ଶିଖିପାରିବୁ ନା, ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ହଁ କ୍ରିଏଟ ତାର? ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଡେଟା ପ୍ରୋସେସିଂ, ଗୋଟେ ଡେଟାକୁ ଆଣିକି ଏଣ୍ଡ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋସେସ କରିକି ତାକୁ କ୍ଲିନିଂ କରିକି ଦେନ୍ ସେଥିରେ କିଛି ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଜେନେରେଟ କରିକି ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇବେ, ଓକେ। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ସେଇଟା ବି ଦେଖାଯିବ, ତ 3ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3ଟା 4ଟା କ୍ଲାସ ପରେ ତମର ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ୱେରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା କି ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ୱେରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଆଜ୍ଞା, RDBMS ପାଇଁ, ରିଲେସନାଲ ଡେଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡାଟାବେସ୍ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଆରଟିଏମଏସ୍। ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ସିମ୍ପଲ ବି, ଏତେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉମାନେ କୋଡିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ଲାଗିବ, ବଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଡେଟା ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଜିନିଷ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ହିଁ, ଦେନ୍ କମ୍ପାନୀର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପାୱାର ଡିପେଣ୍ଡ ବିଆଇ, କରୁଛି। ପାୱାର ବିଆଇ ନାଇଁ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଟା ମୋଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାପରେ ଏକ୍ସେଲ, ଏଇ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ରହିବ ଇଏଟା ନାହିଁ ପାଇଥନ, ନାହିଁ ତାପରେ ଏଇ ତିନିଟା। ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ ସବୁଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି ହେଲା ଏସକ୍ୟୁଏଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ କିଏ ତମକୁ ପାୱାର ବିଆଇ ମାଗିପାରେ, କିଏ ପାଇଥନ ମାଗିପାରେ, କିଏ ଦିଟା ଯାକ ମାଗିପାରେ, ପାୱାର ବିଆଇ ପାଇଥନ ମିଶେଇକି, ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ହୁଁ ହୁଁ କମ୍ପାନୀର ହୁଁ। ଜେଡି ଉପରେ, ଜବ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଉପରେ, ସେ କଣ ମାଗିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିବ, ତମେ କଣ କରିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଅର କୁ ପଚାରିବ, ସେ ଜେଡି ସେୟାର କରିବ ତମ ସାଙ୍ଗରେ, ଜବ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ, ସେଥିରେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ ହେଇଥିବ କି କଣ କଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର। should be ହୁଁ proficient ହୁଁ in ହୁଁ। SQL and Power BI, proficient ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାଇମାରୀ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି SQL Power BI ଉପରେ, It's okay, completely depend good, upon the project actually. yes, good to have knowledge on Python ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ହେଲା। ହୁଁ 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 Python ହୁଁ। will be additional, I mean additional impression or something ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ଏମିତି ସେଇଟା JD ରୁ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ କଣ କଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ। Okay, so yeah, that's all for today's session, guys. Thank you so much for joining. Have a great day, great weekend. Bye. Yes, sir. Thanks for Thank the you, good sir. decision. Thank you, and Yeah, same to you, sir. thank you. Bye.